महाराज जी को मुझे याद है, मैंने पहली बार जब देखा था तो मैं आई वॉज जस्ट 5 years old, और हम रंगमंच में गए थे, वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस चल रहा था। और मुझे याद है, इवन एज अ 5 year old आई वॉज इन द ऑडियंस, आई वॉज वॉचिंग हिम, and somewhere even at that tender age I just knew that I was watching a genius basically, because the way he was emoting, whether it's Radha, Krishna, the various abhinay that he did, his kathak itself, like tode tukde, lay, the way he used to khelte the wo lay ke sath, the way he used to play with it, just impressed me. And I remember even at 5 or 6 years old, I was awake till 4 o'clock in the morning watching him dance, and I could see the passion he had in him, because at 4 o'clock they started closing the curtains and he was like, नहीं मुझे एक और टुकड़ा मुझे दिखाना है, I just want to do one more thing before you close the curtains. And I was so impressed, I was so taken in, that I was a big fan after that. And the first time I actually met him was after I started working in films and Tezaab had released, and I was in the US and he was conducting workshops, and I went to one of his workshops. I didn't know what to expect, frankly, because I was so enamored by him and his art, that when I saw him for the first time, I was very shy and I was feeling very, I don't know how he was going to react, because he was a classical dancer and here I was, dancing in Bollywood and stuff. And I remember the first thing he said when he met me was, तुमने वो एक दो तीन का स्टेप कैसे किया था, प्लीज मुझे बताओ. And I was floored, because as I came to know him, I realized that he's a legend, but he has a childlike innocence in him. And he never failed to, regale us with different stories from stage experiences that he had had. He used to just keep making us laugh all the time. And I had expected something very different, but I was so, how do you call it, surprised by the way he was. So humble, so down to earth. And I just became a fan for life after that. That's why when Devdas, when I was doing Devdas, and Sanjay Leela Bhansali ji said that I want Maharaj ji to do one of the songs in this, I was there. I said, I know him, I can get a meeting organized. And I did that, and Maharaj ji did my first film song, in Devdas, Kahe Chhed Chhed Muhe. I remember I used to just sit there and watch him express so many things, like just one line, Kahe Chhed Chhed Muhe. He did it in so many different ways, like so many different ways in which you can do Chhed Chhad, and the expressions, the abhinay. I was just trying to soak everything in as much as I could. Also, at the back of my mind, I was like, I haven't done Kathak for a long time, and Bollywood kind of, because of the thumkas and all that, thoda body thoda change ho jata hai the way you dance, but with him it was like very pure Kathak. And I tried to keep that element when I did that song. uh, it was just mind blowing, just sitting there and watching him perform. And I was, in my mind, I was glad, and I was so happy that Maharaj is doing this song for me. After that, we did another song actually in a film, Ded Ishqiya, Jagave Sari Rehna. That was also so beautifully done, and so beautifully shot. I was also honored and so fortunate to have him on Dance with Madhuri. He's taken some Kathak classes on Dance with Madhuri. He has taught, because I wanted that the best of gurus be available to people who want to learn. And for me, he's the best. And so when he agreed to do this, I was on the seventh heaven. I said, this is it. This is what I've always wanted. And there's so much to learn from him. He has not only taught me like the abhinay or the dance itself, but with that, I think I learned a lot of humility, grace, elegance from him, which was all there in his dance. He's made it into a science, how the body should move, how graceful you can look when you're dancing Kathak is when I watch him. I mean, he's not only my Guruji, but he's also a friend to me.
he always conversed on that level, never as a guru or never as someone who's strict and ye aisa karna hai. But he used to make us laugh. He used to entertain us with his stories, and I just have very, very, very fond memories of him. And his passing away is like, I don't know, but he lives through us and all the students he's taught, and I'm sure they will carry forward his legacy. And Maharajji's name will always, always be there to us. Maharajji, we miss you. I don't know, just naman. आपको कोटि कोटि प्रणाम. परम आदरणीय बिरजू महाराज जी के निधन से भारत ने एक कला सम्राट खो दिया। उनकी ख्याति विश्वव्यापी थी। उनकी विशेषता ये थी कि सब उनको अपना मानते थे और उनके सानिध्य में रहना चाहते थे। मुझे उनका आशीर्वाद हमेशा मिला। वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते थे और मैं उनके आशीर्वाद के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। उनका और मेरा साथ 40 वर्ष पुराना था। वो कत्थक के सम्राट थे और मैं लखनऊ का निवासी कत्थक का प्रेमी था। जब भी मैंने उनको अपने पारिवारिक उत्सवों में बुलाया, वो अवश्य आए और मुझे और सबको अपने कृत के भावों से और कृष्ण राधा के गीतों के सभी को का मन मोह लिया। मेरा सौभाग्य था कि उनकी लखनऊ स्थित ड्योरी के पुनर्धार में उनकी मदद कर सका। जब कार्य पूरा हुआ तो वो मुझे अपने साथ उद्घाटन के लिए लखनऊ ले गए। उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत आनंद आया। जिस तरह मैं समझता हूँ हनुमान जी को रामचंद्र जी के किसी कार्य को पूरा करने में आया होगा। हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जितनी संस्थाएं महाराज जी ने स्थापित की उनको जीवित ही नहीं परंतु और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराज जी को शत शत प्रणाम। महाराज जी के यादें हम क्या बताएं। उनके साथ तो हमारे बचपन से ही उनको मैं जानती हूँ। कलकत्ता में मेरे गुरु नलिन गांगुली के घर पहले आए और वहाँ से उनसे जो मुलाकात चलता रहे तो ये उनके ज़िंदगी के आखिर समय तक चलता रहा। महाराज जी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही समय उन्होंने हिम्मत दिया, मेरे साथ दिया। मेरे हस्बैंड का निधन के बाद वो मेरे घर में अपना उस टाइम गाड़ी चलाते थे, अपने आप रोज़ आ जाते थे। और मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, पैरालिटिक के जैसे हो गया था, तो महाराज जी आके मेरे पैर में हाथ लगाते थे और बोलते थे तुम आर्टिस्ट हो, तुम कलाकार हो, तुम्हें हिम्मत जुटाना चाहिए और तुमको उठ के खड़े होके डांस करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देखो चींटियाँ भी जन्म लेते हैं और चींटियाँ घोंसला बनाते हैं, फिर उसके बाद वो मर जाते हैं, लेकिन तुम कलाकार हो, तुम्हें तो खड़े होना है, तुमको डांस करना है। ये शास्त्रीय नृत्य जो ऐसे चीज़ है कथक, उसको तुम अपने आप में उसमें जो तुम ढाल सकते हो ढालो। जैसे महाराज जी तो क्या क्या ढाले हैं महाराज जी के जो घराने का जो है, लेकिन उन्होंने तीनों गुरु, मेरे गुरु शंभू महाराज जी, लच्छू महाराज जी और उनके पिताजी अच्छल महाराज जी, सबके इतना सुंदर उन्होंने वो सारा लेके अपने शरीर में और दिमाग में लेके उन्होंने उसको अच्छा तरह से ऐसे ढाला कि सारा दुनिया हिल गए। उनके नृत्य, उनके शास्त्रीय नृत्य देख के कोई नहीं भूल पाएंगे। ऐसे कोई दुनिया में मेरे ख्याल कोई भी नहीं होगा जो कि महाराज जी को नहीं पहचानते हैं। तो हम महाराज जी को क्या बताएं। तो मैं बस यही प्रणाम करके उनको उनका दिया हुआ आशीर्वादी परण और हमारे गुरु शंभू महाराज जी का परण मैं सुनाती हूँ, क्योंकि वो परण सुनना मेरे बहुत पसंद करते थे। तो मेरा पहले मैं मेरे गुरु शंभू महाराज जी का दिया हुआ आशीर्वादी परण सुना रही हूँ।
नाधिन थिन ला नाधिन थिन ला नाधिन थिन ला नाधिन थिन तगनु कड़क धा तड़न धा तगनु कड़क धा तड़न धा घेगेना ना किड़क तगनु कड़क धा घेगेना ना किड़क तगनु कड़क धा तेटे धा तेटे धा धा तेटे धा तेटे धा किड़क तुम तो लगे तेटे धा तेटे धा ने धा किड़क तुम तो लगे तेटे धा तेटे धा ने धा तेटे तेटे धा तेटे धा ने धा तेटे तेटे धा तेटे धा ने धा तेटे तेटे धा तेटे धा ने धा। और महाराज जी का दिया हुआ आशीर्वादी परम ताओ दग 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 थू वाका थू ताओ दग 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 थू वाका थू दिगदा 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 थू तग थू दिग थू तग तग दग तग तग थू दिग थू किटी किटी तग 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 थुन तग तग गिने थई किटी किटी तग 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 थुन तग तग गिने थई किटी किटी तग 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 थुन तग तग गिने थई। प्रणाम, सत सत प्रणाम। नमस्कार, मैं सुरेश तळवलकर। खास करके मैं पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। ऐसा व्यक्तिमत्व गए सेंचुरी में हुआ नहीं। उनका कार्य का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान भर विश्व में इतना रह चुका था कि आज कोई भी कथक नृत्य कलाकार उनकी इस प्रेजेंटेशन को, शैली को कभी भूल नहीं सकता है। खास करके अपनाने की ही कोशिश करेगा, क्योंकि उनका प्रभाव इतना था। लय ताल पक्ष तो उनका ऐसा था कि सिद्धि प्राप्त किया हुआ था। उन्होंने सिद्धि हासिल की थी लय ताल में। आज उनसे भी पहले के कलाकार लोगों को मैंने नृत्य देखा है और नजदीक से देखा है, मगर महाराज जी की बात अलग थी। महाराज जी ऐसी उपज करते थे, 2 मात्रा कहनी पड़े तो खुद के कहते थे। कैसे होता है कि ये विद्या जो होती है वो हमेशा बाहर से अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है वो कला। तो उनकी हमेशा कला की ही प्रस्तुति होती थी। विद्या तो जरूर होती है, विद्या बुजुर्गों से वो भी सीखे थे, उनके घरानों से, सारे बुजुर्गों से, उनके पिताजी, चाचा जी, सब लोगों से वो सीखे थे। लेकिन उनके बाद उन्होंने अपनी शैली एक बनाई थी, जिस शैली का नाम है पंडित बिरजू महाराज शैली। और ये खास करके उनकी लय ताल के जो विचार है वो सुर में भीगे हुए थे। उनकी लयकारी, उनका लय का अप्रोच सुर में भीगा हुआ था। तो ये बहुत एक पूर्ण संगीत कलाकार के लक्षण माने जाते हैं कि उनके गले से वैसे ही सुर लगाते थे, हारमोनियम का हाथ वैसे ही था, सरोद अच्छा बजाते थे, गाते थे अच्छा, पढ़ंत अच्छा करते थे। नृत्य के बारे में तो हम क्या कहें, वो तो उन्होंने घरों घरों तक पहुंचाया और आज उनको हम उनके कार्य को कभी भूल नहीं सकते। हम बहुत बहुत उनका याद करते हैं और स्मरण करते हैं, और वो स्मरण ही हमारी ताकत बनी रहेगी, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।